सेशन है अपना केवल भाई लेंगे. I would request Vanita to please introduce Keval bhai, and then I would request Keval bhai to come on the stage. Now let me call upon the stage Mr. Keval Bhanushali, who will enlighten us with the wisdom of personal financial planning. Keval Bhanushali, founder of One Finance, ex-CEO of LKP Securities, Nanolia Securities and Keynotes. Hi, good evening everyone. Thank you the entire committee at BCOC and Mumbai. We have interacted multiple times. Thanks for having me here. It's my pleasure and honor to be here and interact with each one of you. I've set a timer for 25 minutes, so I think the last 5 minutes should be more than enough, and I promise to not go beyond that 25 minutes. So whatever time we can, let's try and invest it a little more in understanding what we do. अभी काफ़ी मैंने सुना, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, but I heard Meena madam and the entire fireside chat as well with Sanjay bhai. First of all, my best wishes to you, Sanjay bhai, and I'm sure I'll take all and more details. And, this representation is very important. I was not aware that any one of us, especially anybody from Bhanushali community, is actually contesting for this. But this was something which I was always wondering क्यों कोई contest नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर महेश्वरी समाज और इनके तरफ से बहुत ज़्यादा representation है, और जो कि फिर उनके जीतो या other platforms और इनमें आप एक head on start देखते नहीं हैं, तो अपना एक representation होना. I think thank you so much for doing that, and we will make sure that we are all with you as much as we can to the best of our ability. With that, I'll just start one thing. I think a lot of things which were spoken earlier, कि पैसे को कमाता है, पैसे की बात, ना क्या बीवी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, all these things we listen, right? Money at all costs. Let's get rich before becoming a philosopher. But I'll tell you what, if you don't know the real purpose of where the money is coming from, पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा बना क्यों? क्या जब पैसा नहीं था तो क्या लोग खुश नहीं थे? क्या लगता है? कुछ नंबर्स में देता हूँ. दुनिया की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज अगर पर कैपिटा इनकम वाइज देखी जाए तो लग्जमबर्ग है, आगे पीछे कतार, सऊदी, और सबसे ऊपर मोस्टली लग्जमबर्ग ही रहती है. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम वाइज द रिचेस्ट कंट्री इज लग्जमबर्ग. एनी आइडिया व्हाट इज द डिवोर्स रेट इन लग्जमबर्ग? 96%. Right? So okay, so does that make them happy, unhappy? I'm telling you, I can see equal ratios out here. You will have tough time getting out of that door. And also being on the other side of it, I qualified to say that, right? Having been divorced, I can say that, but you can't. No, but on the lighter note, I think what it simply means is, on the other example, I'll give you an example of one of the most poorest countries in the world, that is Bhutan. 5-6 लाख का population है. Happiness index में वो top 10 में आती है all the time, right? तो पहली बात तो ये establish हो जाता है कि पैसा अपने आप में ना आपको सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है. ठीक है, आप पैसे के साथ क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा कि भाई वो आपको सुखी करेगा या दुखी करेगा, right? So with that, of course, this is something which is not, I'm not the inventor of all this, okay? So this is something which is part of the syllabus when I was in Boston, and so I was blessed to come across theory of Dr. Goldberg, which is called the Big Five of Personality. जब मैं behavior economics पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक subject होता है जिसके अंदर you understand why do we take decisions? हम जितने भी decision लेते हैं वो हम लेते क्यों हैं, राइट? तो उसका एक broader classification is fear and greed, but
when you get deeper, then everybody should have the same kind of decisions, right? If that's so simple. Then it was identified that there are big 5 of personalities, okay, and with that, these are the big 5 of personalities. It's called Ocean Framework for the simplicity. So openness represents how willing a person is to try new things, है ना? तो मतलब जैसे एक आदमी होगा हम लोगों में से, अगर मैं बात करूं मेरे अपने परिवार की मैं बात करूं तो मेरे फादर का फाइनेंशियल एपेटाइट वर्सेस साइकोलॉजिकल एपेटाइट और जो एज है वो तीनों कहीं मेरे को मैच करता हुआ नहीं दिखता कभी, राइट? कि फाइनेंशियली उनका शायद रिस्क एपेटाइट इतना उनको अलाउ नहीं करता था जितना वो रिस्क लेते थे, राइट? बट उनका साइकोलॉजी जो है वो आज भी मेरे से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत है. मतलब कई बार ऐसे होते हैं, कोई बिजनेस डिसीजन है, कुछ बातचीत होती है तो मैं ऐसे सोचूंगा अच्छा नहीं ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव होना चाहिए, बट ही विल बी लाइक अरे तू बहुत डरता है, क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? और ये आप सबने फील किया होगा, आप सबने फील किया होगा कि कई बार जरूरी नहीं हम ऐसा सोचते हैं कि पैसा आ जाने से ना आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, या यंग एज में आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, ओल्ड एज में कम हो जाता है. ये सब हम सोचते हैं बट एक्चुअल में ऐसा ट्रू नहीं है. इट ओनली वेरीज बाय 10-20%, ठीक है? जो मतलब यंग एज और ओल्ड एज में उतना ही फर्क पड़ेगा, बट जो इनर जो नेचर है ना वो वैसा ही रहेगा. इसके बहुत सारे स्टडीज हुई, सो ऑफ कोर्स स्टडीज वे डन अक्रॉस डिफरेंट पीपल, स्पेशली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल्स. जो डार्विन के लिए किया था, वुल्फ वाज placed with a bunch of different sheep, okay, and वो पूरी जिंदगी उसको मतलब जो पहले के 10 साल थे उसको एक यही बिलीफ में रखा गया कि भाई तू भी बकरी है, राइट? और वो मानने भी लग गया कि हाँ मैं बकरी हूँ, राइट? और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए. आप अगर जो कहीं भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको दिखेंगे देयर हैव बीन मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दैट हैव हैपेंड लाइक दैट. एंड फिर एक ट्रिगर आने पे, एक एक्सटर्नल ट्रिगर आने पे जो एक इनर्शिया था उसका वो टूटा, और इट ओनली टुक वन ट्रिगर फॉर अ वुल्फ टू बिकम अ वुल्फ बैक अगेन, है ना? एक भेड़िए को वापस भेड़िया बनना, एक शेर को वापस शेर बनने में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल ट्रिगर लगता है. तो इसका मतलब क्या डिफाइन हो गया कि हमारे बहुत सारे जेनेटिक कॉम्पोजिशंस हैं, हमारा नेचर एक चीज है जो कि डिफाइन करता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट क्या होगा. आप सब लोगों को मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिसीजन लेंगे, फर्स्ट थिंग आपके जो वेल्थ मैनेजर होगा, जो आपके जो एडवाइजर्स होंगे, एक ही चीज पूछेंगे, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? अरे भैया ये तो ऐसे हो गया कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर मेरे को बता रहा है कि आपके हिसाब से आपको क्या बीमारी है. आप बताओ मेरे को, आप एक्सपर्ट हो ना, आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ मेरे को मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है. मैं तो कैसे जानूंगा मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट सिर्फ फाइनेंशियल तो है नहीं. तो फिर ऐसी दूसरी स्टडीज करेंगे जहाँ पे ये सब आप लोग अपने आप से भी पूछना, आपको रिलेट होगा कभी कि 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों ने एक स्टॉक में इन्वेस्ट करा, अज्यूमिंग 1 लाख रुपया 100 रुपए के स्टॉक में इन्वेस्ट करा. वो 100 रुपए का स्टॉक जब 50 रुपया होता है, एक भाई उसको बेच देता, बोला यार जान छुड़ा, मेरे को ना नींद नहीं आ रहा, जो आ रहा भागते भूत की लंगोटी सही, ले पैसा वापस, खत्म कर, मेरे को ये टेंशन नहीं चाहिए. दूसरा भाई है वो डबल क्वांटिटी खरीदता है कि यार यही तो टाइम है वापस खरीदने का, एवरेज करो, यहाँ से तो मेरा कंडीशन और अच्छा है, मेरे को 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है, डिस्काउंट में मिल रही है. सो व्हाट डज दैट से? दैट सेज दैट इवन दो योर नर्चरिंग, आपकी टेक्स्ट बुक सबको सेम मिली होगी, सेम चीज होगी, बट आपके ये 5 जो आपके कंपोनेंट्स हैं, आप इसको हार्मोन समझिए, ये हम सब में होते हैं, और ये हम सब में अलग अलग लेवल के होते हैं. इनकी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग होती है, राइट? उसके कारण से ये इम्पैक्ट करता है हम कैसे डिसीजन लेते हैं. तो जब मैं बता रहा था कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स में when we were researching, there were 3 other doctors and scientists along with me who have created this assessment, and just for the sake of mentioning it, money sign assessment is the only psychological assessment of the world right now to be patented in India and US. ओके, सो और कोई भी असेसमेंट नहीं है जिसका पेटेंट है. इट्स देयर इन इंडिया, इट्स देयर इन यूएस, वी हैव आल्सो अप्लाइड फॉर यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. ये आपके हर वॉक ऑफ लाइफ में काम आएगा.
ये कोई आपका ऐसा असेसमेंट नहीं है कि सिर्फ आप पैसा कितना बनाओगे या कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये आपके अपने बारे में है। तो इसके ऊपर जितना आप इसका फायदा उठा दें, देयर इज नो मनी फॉर इट राइट नाउ। सो या दीज आर द 5 थिंग्स। ओपननेस इज अबाउट हाउ ओपन अ पर्सन इज और ईगर टू ट्राई न्यू थिंग्स। किसी को सेम रेस्टोरेंट में हर सुबह रामाश्रय हर संडे जाने में मजा आ रहा है, राइट, और किसी को है हर सैटरडे एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करना। तो दोनों का एक नेचर है ना, जरूरी नहीं है कि वो एज से कोई रिलेटेड। सो वो ओपननेस में आता है। कंसेंशियसनेस, सो दिस इज अगेन इट्स एन एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टू बी मोर डेलिजेंट, है ना। हर चीज के पहले सारे डाउनसाइड लिख लेना, सोचना ये कितना, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस दैट आई कैन हैव, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, ये सोचना। ये जो एक डेलिजेंट आपका एक अप्रोच रहता है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। एक्सट्रोवर्जन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीन्स दैट हाउ एक्सपेरिमेंटल यू आर। जो किसी ने नहीं किया वो मेरे को करना है, नया चीज बताओ भाई कुछ, यू नो, लाइक पीपल हु कैन कैरी पर्पल सूट्स, people who can carry golden boots, right? So they really want to break away from the clutter. अब ये क्या है, just to give you an example, इस तरीके के लोग होंगे वो क्रिप्टो या नए एसेट्स या नई चीजों की तरफ खुद से आकर्षित होंगे, उनको एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। अब उनको आप रोकोगे कि नहीं भाई करना ही नहीं है एफएनओ, तो क्रिप्टो तो करना ही नहीं चाहिए। एफएनओ मतलब बॉस दिस इज द वर्स्ट थिंग। अच्छा रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। No, so God has been kind. We do pretty good volumes in FNO, okay. And let me tell you, to the extreme popular belief where people think के FNO आपको ले डूबता है, FNO. I'll tell you, I mean the largest or the richest stock market AMCs in the world, from BlackRock to Vanguard of the world, have the largest derivative desks. In fact, they are the people who create derivatives. So derivatives are far more safer than long only stocks. And it's proven. It's not my view. It's proven. But unhedged derivatives is something that is, derivative was not created to be played like options. जो आज जो लोग खेलते हैं 20,000 रुपए ले जा करके 7 up 7 down, कि या तो 2 लाख हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, वो डेरिवेटिव नहीं है, वो सट्टा है। बट डेरिवेटिव अपने आप में इट वाज क्रिएटेड एज एन इंश्योरेंस टूल। आप लोगों में से कोई अगर एक्चुअली और इसके आसपास होगा तो उनको पता चलेगा कि डेरिवेटिव के बगैर आप कोई भी पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड कोई भी नहीं चला सकता है, चाहे वो बर्कशायर हाथ में हो या कोई और, राइट, सब डेरिवेटिव करते हैं। सो यस, कमिंग बैक टू दैट, अगेन एग्रीएबलनेस, दिस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स लाइकिंग, कि जो सब कर रहे हैं तो अब सबका डीमैट अकाउंट है, सबने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, मेरे को तो डालना, मैं रह गया, राइट। सब लोग शेयर बाजार में कर रहे हैं, मैं रह गया, तो वो करेंगे, पर वो आखिरी में ही आएंगे। ये कभी भी कोई भी चीज पहले नहीं करेंगे, ये पहले वो चीज नहीं करेंगे। जब सब लोग कहीं और जा करके रहने शुरू करेंगे, ये जाके जरूर रहेंगे। लाइक दीज आर पीपल हु वांट हमारे आसपास क्या हो रहा है उसी के बाद वो करेंगे। सो दीज आर ऑलवेज कॉल्ड in the larger behavioral economics, these are basically the tailbacks. Okay, they will never be the 1,000 true fans. So again, जो आप एक ब्रांड बनाते हो, आप एक कंपनी बनाते हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, तो जितना ज्यादा एक्सट्रोवर्जन और कंसेंशियसनेस में हैवी आपका कस्टमर होगा, जो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आने के लिए, लेकिन सबसे पहले वही आएंगे। और उनको अगर आपने संभाल लिया, उनको अगर आपने खुश कर दिया, जो पीछे के जो लोग हैं, they are brand, the first category, first 1,000 people are your brand ambassador, और बाकी के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू करेंगे। तो एप्पल की आप अगर एनालॉजी ले लें, तो 1,000 बड़े जो लोगों के हाथ में अगर आपने एप्पल फोन देख लिया, तो बाकी के जो 9,000 लोग हैं वो उनको देख करके आ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में फीचर्स क्या है, पर उनको लगता है नहीं भाई अपने को भी ये चीज है, राइट। सो these are people with very high agreeable quotient. And then there is neuroticism. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अगर कोई बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल व्यक्ति आपको एकदम हाई स्टेचर में लग रहा है, जिसको कैमरे का बहुत ज्यादा शौक है अपने देश में, तो किसका नाम आपके ध्यान में आता है? जो हर जगह पे जिनकी फोटो आती है, चाहे वो आपके मेरे आधार पे हमारे नाम से बड़ी हो। अरे रिकॉर्ड है, मैंने नाम तो दिया ही नहीं।
Right. So that is again that is something which is derived. आपका न्यूरोटिसिज्म कितना हाई है ना? वो बॉर्डर लाइन पे होता है, उसका आगे जाता है तो वो नार्सिसिज्म बन जाता है. बट हम सब में ही है, हम सबको मजा आता है ना स्टेज पे बुला करके कोई शॉल पहनाए, एक अवार्ड दे, तो हम सबको मजा आता है. अब ये है कि वो कितना मजा आता है वो वेरी करता है. Right. So based on that we created this. Then this डॉक्टर गोल्डबर्ग की जो फिलोसॉफी थी वो चार्ल्स डार्विन के फिलोसॉफी के ऊपर हमने लगाई. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट चार्ल्स डार्विन. ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द बिग बैंग थियरी और देन यू नो लाइक द होल इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा इन्होंने चार्ट आउट किया. तो जो कि हमारे शास्त्रों में भी था कि जो हम मत्स्य से पैदा हुए, मत्स्य से मनु आया और मनु से आगे जो चीजें जो हम अदरवाइज बोलते हैं, बट उनको बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव किया गया द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में. सो व्हाट वी डिड वाज ये सारे 5 पैरामीटर ऑफ डॉक्टर गोल्डबर्ग को हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में मैच करके हम सबके अंदर आज भी एज हाई एज 97% डीएनए मैच है डिफरेंट एनिमल स्पीशीज का. तो आज हम सबके अंदर थोड़ा सा टाइगर का डीएनए है, थोड़ा सा हॉर्स का डीएनए है, थोड़ा सा पक्षियों का डीएनए, जो कि लास्ट इनफैक्ट पक्षियों के अंदर आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो हियर दैट बर्ड्स आर द एक्चुअल डिसेंडेंट ऑफ डायनासोर्स. सो द लास्ट इनफैक्ट दे आर कैटेगराइज्ड एज द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ डायनासोर्स. उनकी जो डीएनए जो श्रेणी जो आती है वो लास्ट स्पीशी में आज भी बर्ड्स में आती है. राइट. सो द इनफैक्ट द लार्जर बर्ड्स, the vultures and the high-end eagles, they are जो हम जो यहाँ कचरे में घूमते हुए देखते हैं वो बेसिकली काइट्स हैं, वो ईगल्स नहीं हैं. हम मोस्टली उनको सबको एक ही कैटेगरी में डालते हैं, पर वो काइट्स हैं, वो ईगल नहीं है. ईगल आर वेरी डिफरेंट देन काइट्स. So yeah, then we mapped them on this Charles Darwin theory of evolution and we created these 8 money signs based on different acumens on land, water and air. Okay, and that's how we had created this entire site. Okay, so you know, like this is the whole background of money sign. Now let me come back to personal finance. Why are we doing this? तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों में से जो भी आज अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, लोन्स लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा बात करते हैं कि हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम भूल जाते हैं जो कि है लोन. सो वेल्थ मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस में ये एक डिफरेंस है. वेल्थ मैनेजमेंट काम करता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स या रिटर्न्स में, कि भाई मेरे को 10 से 12% इज बेटर देन 10%. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री 10% इज बेटर देन 12% एज रिटर्न? राइट. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू शुड, राइट, मैथमेटिकली. बट इज इट बेटर फॉर यू? द आंसर में बी डिफरेंट फॉर ईच वन ऑफ यू. क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि एक जो आप 12% के एसेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके साथ आता है एक रिस्क. उस रिस्क के अंदर आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसको हम इन जनरल कहते हैं, तो वो रिस्क अगर आपने नहीं समझा है और आपके अपने साइकोलॉजी के हिसाब से अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील करेंगे. इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं कि अभी आज की तारीख में जैसे यू सी ऑल दीज स्टॉक मार्केट बूम हैपनिंग में, कि भाई एफडी में पैसा डालना तो क्राइम है, ये तो मेरे दादा करते थे. सुना आपने अपने वेल्थ मैनेजर, बैंकर, इंश्योरेंस सेलर, इन सबसे सुना ही होगा, राइट? एफडी में पैसा डालना तो बेवकूफी है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आज भी 90% ऑफ द सोवरिन फंड इन द वर्ल्ड इज इन डेट. तो अगर जब गवर्नमेंट अगर इतना इजी होता है इक्विटी से पैसा बनाना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं सारा पैसा डाल देती है ना? उसको भी तो फिर इक्विटी में डालना चाहिए, वो क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि उसके साथ एक रिस्क आता है विच इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी रिस्क, मार्केट रिस्क. तो जो गोल्स आपके कंपल्सरी गोल्स हैं, जिसको हम हार्ड गोल्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने एजुकेशन फीस भरनी है 3 साल के अंदर, राइट? और जब आज से आपने एसआईपी शुरू कर दी, बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका रिटर्न 20% 25% हर साल का आ रहा है, राइट? और जिस साल आपको जाना है 2027 में, उस साल मार्केट क्या रहेगा इसकी गारंटी आप में से कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता. और मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं. एक है जो बोलते हैं कि भाई मैं सब जानता हूँ, राइट?
और दूसरे हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं कि मैं सब जानता हूं, जो कि जानते हैं कि वो नहीं जानते, राइट। पहले वाले जो वो मानते हैं, बट बोथ ऑफ देम आर ईदर स्टूपिड और लायर, है ना, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। नोबडी, अभी आप जो दूसरी बात कर रहे थे, आई थिंक समवेयर यू आस्क्ड द लेडी आउट देयर टू प्रेडिक्ट समथिंग कि 2 साल का हम कब तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। The fact is that you cannot predict what will happen tomorrow, but can you prepare? Yes, possibly you can, right? So the point being कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट SIPs में की है, म्यूचुअल फंड में की है, इक्विटी में की है, and today the sole reason for me to come here and express this to all of you because there is so much of hoo-ha about equities in India, okay? And I see people with extreme low financial and psychological appetite going berserk and feeling that FOMO कि सबने कर दिया, सबने पैसा बना लिया, मैं रह गया। तो अब जा करके चढ़ के मार्केट में पैसा डालना, घर नहीं खरीद करके मार्केट में पैसा डालना, बाय वर्सेस रेंट, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लीज मत करिएगा। उसका मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। टॉप 20 बेयर फेजेस मैंने निकाला था 1929 और 32 के बीच में। दिस इज ओनली फॉर यूएसए क्योंकि उनका लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट का सिर्फ 20 साल का देख के मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पहले का कोई सेंस नहीं बनता था, हम लिबरल नहीं थे। 92 के बाद ही हमारी मार्केट में पार्टिसिपेशन आया, तो उसके बाद ही नंबर्स देख के मतलब है, इट्स अ शॉर्टर टेन्योर। 83% मार्केट गिरा था, 83%, एंड दैट स्टेड लाइक दैट फॉर 3 years. 1937 to 38 again another 54% गिरा। 46 to 47 23%, 1973 to 74 45%, 2000 to 2002 59%, 2007 and 2009 58%, 1969-70 28%। नाउ जब मार्केट 50% गिरता है ना, आपके जो स्टॉक्स होंगे वो 60, 70, 80% भी गिर सकते हैं, और ये गिरेंगे। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये गिरेंगे, और वो मौका होगा पैसे बनाने का, वो मौका पैनिक करने का नहीं होगा। तो उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स चूज करें जो आपकी साइकोलॉजी से मैच करते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। आज आपको लगता होगा कि नहीं, तो मैं ना 25 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाता हूँ, भूल जाऊंगा। अच्छा, जिस दिन नौकरी चली जाएगी या धंधा ठंडा हो जाएगा, भूल पाओगे, तब तो याद आएगा ना 25 लाख रुपए लगाया आज। और द वर्स्ट पार्ट अबाउट इक्विटी इज, इक्विटी का नाम जो रखा गया, दैट स्टार्टेड फ्रॉम, उसका नाम का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये 2 वर्ड को मिक्स करके इक्विटी बनाया गया। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ग्रोथ इज इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रोथ में ही परफॉर्म करेगा, तब आपकी नौकरी भी अच्छी चल रही है, आपका धंधा भी अच्छा चल रहा है, आपकी बाकी सारी चीजें भी अच्छी चल रही हैं। लेकिन जिस दिन ये सब मंदा होगा, उस दिन इक्विटी भी मंदी होगी, तब आपको इक्विटी का पैसा काम नहीं आएगा, तब आपको इक्विटी का पैसा डालना पड़ेगा। तो आप एसेट एलोकेशन समझिए। पर्सनल फाइनेंस के लिए मैं लास्ट में आपको 2 मिनट बचे हैं, सिर्फ इतनी चीज बताऊंगा। पर्सनल फाइनेंस और जनरल फाइनेंस में इतना फर्क है, आप 5 चीजें यही वापस ले जाकर के याद रखिएगा। डज दिस डिसीजन सूट माय साइकोलॉजी? इज इट टेलर्ड फॉर मी? मतलब क्या ये मेरे अपने पर्पस के लिए है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3, विल आई बी एबल टू स्टैंड थ्रू इट, दिस डिसीजन, इवन इन द बैड टाइम? विल आई कंटिन्यू दिस SIP? अगर मेरी नौकरी चली गई, क्या मैं कंटिन्यू करूंगा? मैं आपको बता रहा हूँ, 2 करोड़ लोग आज की तारीख में जो SIP नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 साल के अंदर जो आए हैं, ठीक है, आपको जानकर ये हैरानी होगी, 97% ऑफ SIPs इन इंडिया डू नॉट गो बियॉन्ड 3 years। और जबकि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने के लिए 5 साल का तो मिनिमम टाइम बोलते ही है। 55% SIPs आर स्टॉप्ड इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, आफ्टर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, राइट? तो इसका कारण क्या है कि आप ओवर जर्निंग कर रहे हैं, तो ये नहीं करना, ठीक है। 4th वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, is my family also on board or my entire situation on board with my personal finance, है ना? ये चीज आपको ध्यान देनी है। And 5th and the last thing, will I be at peace with my personal finance? Because my closing statement will be, money is not the goal, life is the goal, right? Money is a mean to a good life. Money itself will not give you good life, okay? तो पैसा जरिया है, पैसा आपकी मंजिल नहीं है, ये आप ध्यान रखें, इसको हमेशा ध्यान रखें। गेटिंग रिच एट द एज ऑफ 80 बाय लिविंग मिजरेबल टिल 80 इज द वर्स्ट वे टू डाई, है ना?
80 साल की उम्र में करोड़पति बन के कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। वो जो मतलब जितनी भी आपने थियरी करी है, हाँ आप बिल्कुल करोड़पति बनिए 80 साल की उम्र में भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग दिस 80 इयर्स, हेल्थ को वेस्ट करके। इसका क्लोजिंग एग्जांपल मैं आपको दूंगा। राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफे की थियरी ऑफ इन्वेस्टिंग वाज सेम, आइडेंटिकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वैल्यू पिकिंग, ऑल ऑफ इट। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी के लास्ट 10 साल वीर शहर पे बिताए। विल आई एक्सचेंज माय एंटायर लाइफ इवन फॉर अ डे ऑफ दैट 30,000 करोड़? नो, मैं फ्री में भी वो लाइफ नहीं लूंगा। वॉरेन बफे, चार्ली मंगर लास्ट ईयर पास हुए, उनके पार्टनर एट एन एज ऑफ 99। Warren Buffett is 96 right now. He eats a McDonald's burger every day, one Coca-Cola every day. That's his daily food, and he has got no problems. He is still living. Why? Same investment strategy और राकेश झुनझुनवाला से बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास, बट क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ट्रेडर माइंडसेट की है। राकेश झुनझुनवाला का माइंडसेट जो था वो पैनिकिंग था, तो इसके लिए जब भी मार्केट में पैसे बनाते थे वो थियरी से चलते थे, लेकिन उनके ऊपर वो हावी होता था, वो स्ट्रेस होता था उनको। उसके लिए उनको शराब पीनी पड़ती थी, या नशे करने पड़ते थे, या स्लीपलेस नाइट आती थी, सब कुछ आता था उनको। जबकि वॉरेन बफेट सेम चीज से गुजरते थे और उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो प्लीज चूज योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड उसके लिए आप जितना हो सके उतना फाइनेंशियल प्लानर्स और क्वालिफाइड लोगों के पास जाए, ना कि रैंडम इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले। आई थिंक दैट्स इट. We have got 5 minutes or 4 minutes, whatever. Please, if you have any questions, or I think we have saved 4 minutes for the next session. Anything? Anybody? Yes, please, sir. जी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही है, सब में ही है 5। सबको मजा आ रहा है स्टेज पे फोटो खिंचाने में। अब किसी को ज्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, ठीक है? तो वो बिल्कुल नहीं है, सबको वो होता है। तो यू हैव टू नो कि आपके अंदर क्या है, आपको ये जानना है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप लोगों ने मनी साइन ली होगी, एक कॉमन मिस्टेक लगती है लोगों को कि मैं अगर वर्चुअस एलिफेंट हूं तो मेरे को शार्क बनना है। भाई आप बन कुछ भी नहीं सकते, जो आप हो वही हो। कुछ और बनने जाओगे तो कुछ और बन के आ जाओगे। ओके, तो कुछ भी मत बनिए ताकि कोई आपको नहीं बनाए। ओके, आप जो है उसको एक्सेप्ट करिए, और उसके अराउंड बहुत स्ट्रैटेजी है पैसा बनाने की। अगर कोई आपको ये बोलता है कि डेट मार्केट में पैसा नहीं बनता, आप मेरे से बात कराना। WDM में हम 3-4 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर करते हैं WDM होलसेल डेट मार्केट में, और इक्विटी से ज्यादा पैसा बनता है। आप अगर जो आपके कैश फ्लो के हिसाब से आपको जिस तरीके से अगर आपको करना रहेगा, आप अगर जानते हैं कैसे पैसा बनता है, आप बना सकते हैं। जिन्होंने 12% का, आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आगे का बॉन्ड्स खरीद लीजिए। जैसे ही रेट रिवर्सल साइकिल होगा, आपके पास 15 साल का बॉन्ड पड़ा है, आप 2 साल में उसके अंदर 30% रिटर्न कमा लोगे, और इक्विटी में शायद ही कमा पाओ। यस प्लीज, एनीथिंग, एनीवन एल्स? दैट्स इट. आई थिंक वी हैव सेव्ड आवर टाइम. Thank you so much. Thanks again. Thanks for having me. Thank you, Keval bhai, just be on the stage. So basically, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एंड हमने पहले टैक्स प्रपोजल्स देखे, तो कैसे हमको टैक्स प्लानिंग करना है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर अगेन द साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. I don't know whether you noted the introduction of Keval bhai. So he has been the CEO of many broking firms in the past. मतलब equity वगैरह सब कुछ किया उन्होंने. उसके बाद में the kind of wisdom that he carries now is what basically he has shared with you. I'm telling you that if basically he goes for a 1 hour session or a half an hour session to some other forum, I'm sure that he can charge a lot, but he has done it for free. But whatever advice that he has given, please take it. This is going to be very important because इसके आगे का जो सेशन है कैपिटल मार्केट का, उसमें हम बताएंगे कि बेसिकली कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, बट उसके लिए एक्सपेक्टेशन जो है आपके वो थोड़े से टोन डाउन कर दिए हमने. तो अगेन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, आज बस 4-5 टिप लेके आएंगे, मंडे को इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बनाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. इन्वेस्टिंग सर्टन इज अ लॉन्ग टर्म गेम. One very important thing which we talk about is the full form of equity is the equal opportunity. I think ये सबको ध्यान रखना चाहिए. बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो एक कोट है, एक वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि
nobody knows, what the stock market is going to do or even out to do. Hence, the most valuable asset is the knowledge, and that's what you get at PCOC. PCOC word नहीं था उसमें, ये मैंने डाला है, but this is what was said by Peter Lynch, and I'm sure that यहाँ पे मार्केट में लोग हैं जो बेसिकली बुक्स वगैरह रीड करते हैं, उनको पता है कि पीटर लिंच क्या थे. So now I would call upon Bharat bhai to felicitate our guest Keval bhai. Please come on the stage. भरत भाई एक मिनट, आप स्टेज पे आए हैं तो मैं इससे आपको Thanks for this red rose. I think I'm getting a red rose after many years. So thank you. Mostly I've got yellow and white roses these days. सो एक चीज़ सुना इसने, तब जब ये सेशन ले रहे थे बोला था कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द गाय हु बेसिकली डिवोर्स. इनफैक्ट ही वाज सेइंग दैट इज एक्चुअली एलिजिबल बैचलर नाउ बैक अगेन. Yeah, Bharat bhai, I would want basically you also to share a word of wisdom. Let me basically introduce Bharat bhai. Basically also belong to the investor community, and he also has basically a lot of psychology that obviously has gone behind this kind of money making which happens. But we would want to hear a word of wisdom from him. हरिओम क्या મળે તો એક લાઈન કચ્છી में बोलूँगा તો એટલા મને બધા ભાનુશાલી વા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ આકર્ષણ એને બહુ જ સારો લાગે તો જેમ રીતે છેલ્લે 10-15 વર્ષ મેં પ્રગતિ કહી है ભાનુશાલી અને છેલ્લે ખાસ કરીને 5 વર્ષ में બહુ મજા છે હતી. થેન્ક યુ. અને छेल्ले भाई केवल भाई ना, और एक केवल भाई के लिए बहुत जोरदार ताली जो उन्होंने बोला नहीं इतना दिल से, मतलब बहुत छोटे मोटे बड़े बड़े बहुत कुछ मैंने अटेंड किया मगर इतना दिल से बोलने वाला आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है स्टेज पे वो भी. थैंक यू. हाँ तो ठीक है, सर ने बुला लिया तो बोल देता हूँ, बाकी इतना बोलना आता नहीं है मुझे इतने सबके बीच में. स्टॉक का नाम दे देता हूँ पहले ही, मैं नॉर्मली ऐसे चालू करता हूँ 3 का. जो भी सिद्धार्थ भाई आज बोलेंगे ना आज के बाद, सिद्धार्थ भाई मेरा 3 का है, मेरा भांजा है. नॉट आई एम प्रमोटिंग हिम बट सम काइंड ऑफ गुरु ऑल्सो मेरा सिद्धार्थ जेन्युइनली. एंड योगी भी सुपर है तो मैं सुनने के लिए आया हूँ. लास्ट ईयर भी आया था, फर्स्ट टाइम ये टाइम आया हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग और ज़्यादा कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्या है, नहीं तो मार्केट होता है ना 6-12 महीने में लोगों का भ्रम दूर हो जाता है और वो सेबी भी बोलती है 97% पीपल लूज मनी. तो जेन्युइनली आप लोग ऐसा मत करना, थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा ये करना. आपको अच्छे अच्छे बंदे बताएंगे क्या स्टडी करना, क्या करना चाहिए. तो सिर्फ इतना बोलूँगा, शायद योगी भाई नाराज हो जाए, बहुत सारा सट्टा मत करना, इंट्राडे मत करना, थोड़ा सोचना समझना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलना. 2 साल में पैसा डबल नहीं होता है मगर उसके लिए 20-30 साल की तपस्या होती है और एक बड़ा बुल रन होता है. तो 34 इयर्स से मार्केट में हूँ. मेरा पूरा फैमिली, मेरे दोनों बच्चे सी है, मेरी बहू, हम फुल सब लोग मार्केट में और सब सुनने के लिए आते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, बहुत मजा आता है. तो बस खाली 2 सलाह हैं. और स्टॉक का नाम मैं फंडामेंटल नहीं समझा सकूंगा. स्टॉक बोल गया तो बस थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट भानुशाली. थैंक यू. 10-10 हज़ार फीस के साथ मुझे बाहर मिल सकते हैं. थैंक यू भरत भाई. तो भरत भाई अगर स्टॉक बता देते तो मंडे को उसमें एक्चुअली सर्किट लगने वाला था. तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने स्टेज पे अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनको एक एक करके बुलाऊंगा. वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर गोइंग टू कम.
So I would first want to call upon stage IDFC First Bank officials to come on the stage and give a brief about their products. इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि यू विल हैव 2 minutes each to talk about the product. बाहर में इनका टेबल भी है जहाँ पे बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक अपने प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने रखा है. ऑब्वियसली इसके बाद में आप जरूर इंटरेक्ट कीजिएगा. ओवर टू यू. So, very good evening everyone. I'm Abhishek Srivastava. I'm part of startup banking team of IDFC First Bank. We handle startups. So, because we have a limited time, so I just wanted to share with you what we do for the individual customers. We offer saving bank account, which is having a lot of facilities, including a distance journey for an individual. Along with that, we offer interest rate, which is 7.25% interest rate on the saving accounts. So this is one of the benefits we offer to our individual customers having a saving bank account. Now coming to current account customers, which as in professional you can offer to your customers. We offer Bravo, which is one of feature of our current account, which is basically a sweep and support facilities. But we offer 7.25% interest rate for 370 days. That kind of interest your customers can earn if they are having a current account with IDFC First Bank with Bravo features. Right? I also would like to talk about in a startup we have multiple products, which is I'm sure the couple of customers who are also serving to the startups also. So we have a customer, we are offering zero balance current account to the startup for 3 years. We also offer corporate credit card, which is FD back credit card, which is a very innovative product. After 9 months of usage, up to 25% limit increase on a corporate credit card, which helps the startups to take care of your individual expenses, their company expenses, instead of using their own personal credit card for the company expenses. This is one. The second, after 9 months of billing, they also start making a credit history. This is the second product. The third, we offer credit line to the startup. Yes, we have a certain parameters. If startups qualify that parameters, even if they are a pre-profit, we are ready to evaluate and we offer a credit line to the startup. So this is one of the product which we are offering to the startup, a credit line to them. Then we have a CMS facilities, cash collection facilities, payout facilities, like we have a payment gateway services for collection, the POS services. We have a very unique features for corporate salaries account for their customers. We offer 35 lakh rupees of insurance along with a corporate salary account for the employees of the startup. So in a nutshell, we are also having a trade services for the startups where we are offering very competitive rate, and especially we help the startup when they are raising the funds from outside. We help them to structure the funds, as well as we offer very competitive rates on the deposits. Now for trade, I would like to call my colleague to discuss it. Good evening all. Myself Vivek. I am handling the trade and forex product. Basically, we have designed the product for those customers involved into import, export and cross-border transactions. We have the online platform for import payment and export. Also, those are customers receive the inward remittance settled within 30 minutes through online. And we are not having any kind of sweep and commission charges. जो छोटे-छोटे charges रहते हैं import और exporter को काफ़ी मायने रखते हैं, वो हम लोग नहीं रहते. इसी तरह से हमने हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, जैसे सर ने कहा है कि उसी तरह से आप ब्रावो प्रोडक्ट ले सकते हैं, जहाँ पे आपका जो आइडियल फंड्स रहता है अगर आपके करंट अकाउंट में जो ऑटोमेटिकली स्विफ्ट हो जाता है आपके एफडी अकाउंट में, जहाँ से आपको अच्छा सा इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं. ये सब फैसिलिटी हम एज IDFC के जो कस्टमर हैं उनको प्रोवाइड करते हैं. साथ में जो छोटे छोटे चार्जेस रहते हैं जो अदर बैंक के जैसे RTGS, NIMT, IMPS, ऑल चार्जेस आर फ्री. तो आपको जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स है तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए. मेरे कलीग्स ये आपके हॉल के बाहर ही हैं, जिनको भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, ट्रेजरी टीम है हमारी. जब भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. वी विल हेल्प यू इन ऑल मैनर्स फॉर इंपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? Thank you IDFC First Bank for supporting the BCOC's initiatives, and obviously we will also support you, be your customer, and certainly get you startup funding. There are a lot of CAs basically who are engaged in startup funding. Certainly will be honored. Thank you so much. Just remember, we are a young bank as like you. Thank you so much everyone for your time.
थैंक्स अ लॉट। सो बेसिकली इनके जो बॉस है वैद्यनाथन, उनके साथ में मैंने एक्चुअली काम किया था ICICI बैंक में। एंड अगेन ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन एंड श्योर यू वुड हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम गिविंग शेयर्स टू हिज ड्राइवर्स एंड ऑल, सॉर्ट ऑफ philanthropy that he does. Thanks a lot. Now I will call upon the stage Adit Bhatt, the director of WellStube, and Sunil Joseph to briefly talk about their products. Hari Om again. So basically we are a mutual fund catering business. Our name is WellStube and we have our stall outside. What we do is here जो को मैंने केवल भाई ने मैंने लोगों के समझाया डायरेक्ट इक्विटीज जो लोग नता कर सके they come through the mutual fund route but they come into the markets. But direct investment and indirect investment, you know the risk what we are doing. So we manage close to 18,000 clients and an AUM of around 8,000 crores. Our office is just here in Ghatkopar East near Odeon. And Komalben, माझे એટલે સમાજની છોકરી है. She is handling the counter today and she is associated with us. So you can ask any questions. So what Keval bhai told is personal finance needs to be personal. So not everyone will have the same thing, same type of returns or same type of return expectations. What you have to do is come and meet us, and personally we can, each one of you, we can engage and give the best solutions what we have. Yeah, that's it. I think we have one of our partners also here. He will just share, Mr. Adit. Thank you friends. ગુજરાતી ચાલશે બધાને? ગુજરાતી ફાઇન. આ હોલમાં આપણે ભેગા થયા છીએ તો આઈ વુડ લાઈક ટુ નો કે આપણામાંથી ઇન્વેસ્ટર્સ કેટલા છે? ઇન્વેસ્ટર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શેર્સ. ઓકે, કેટલા લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે શેર્સ લે છે અને 5 વર્ષમાં વેચી નાખે છે? कोई नहीं, बता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. वेरी नाइस. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स वेल्थ. म्यूचुअल फंड शेयर्स बधाने खबर है. केवल भाई भरत भाई बहू सरस रीते कॉन्सेप्ट क्लियर कर्या बधानो. पण तमे कोई बैंक में तमारुं खातुं छे तो घणा लोको कहेशे बैंक सारी छे, घणा लोको कहेशे बैंक खराब छे. सेम बैंक कोई पण ब्रोकिंग कंपनी है तो घना किसी एडवाइस सारे है, घना लोग किसी खराब है. तो देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन. एवी ज मारा कहेવાનો मतलब एम છે કે સંસ્થા એક જ છે, બેંક એક જ છે, પણ તમે કોની સાથે જોડાયેલા છો મહત્વનું એ છે. તમારા મેનેજર કોણ છે, તમારું હેન્ડહોલ્ડિંગ કોણ કરે છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા સમાજની દીકરી કોમલબેન ભાનુશાલી, कदाच आपने जाण नहीं एमना व्यक्तित्व विषय, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम पॉइंट्स. लगभग 6 वर्ष पहला कोमलबेन म्यूचुअल फंड SIP करवा अपनी ऑफिस में आवेला. एक कॉमन फ्रेंड थो तेमना जे अमारा कॉमन फ्रेंड जेमणे कीधुं के कोमलबेन डिजाइनर छे, सारा एवा पैसा भेगा कर्या छे डिजाइनिंग में અને म्यूचुअल फंड विषय जानकारी જોઈએ છે. तो प्लीज एक्सप्लेन हर अबाउट SIPs and investment, so on and so forth. तो she came to our office 6 years back and basically she is a designer by profession અને ખૂબ જ હેન્ડસમ ચાર્જ કરે છે કોઈને બ્રાઇડલ ડ્રેસીસ કે ઇવેન્ટ ડ્રેસીસ ડિઝાઇન કરીને. તો she used to earn a lot. પછી થોડુંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બ્રીફલી સમજાવ્યું. પછી મેં એમને કીધું કે તમને એક એવું પ્રપોઝલ આપું કે જેમાં તમને ઇન્કમ બહુ ડિલેમાં થશે, બહુ ડિલેડ ગ્રેટિફિકેશન. એટલે ઇન્કમ તમને મતલબ 7, 8, 10 વર્ષ પછી થશે, પણ રિસ્પેક્ટ બહુ મળશે, પ્રતિષ્ઠા વધશે તમારી. તો કે કામ બતાવો. તો મેં કીધું કે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્લ્ડ, એમાં બહુ મોટો ગેપ છે.
વિમેન ઇન્વેસ્ટરને અમે લોકો કનેક્ટ જલ્દી નથી કરી શકતા. વિમેન ઇન્વેસ્ટર કોઈ મોટી ડૉક્ટર લેડી હશે, કોઈ લોયર લેડી હશે, બિઝનેસ વુમન હશે, પણ એના ફાઇનાન્સીસ જે સંભાળે છે એના કદાચ પેરેન્ટ સંભાળતા હશે, કાં તો હસબન્ડ સંભાળે છે, કાં તો ફાધર ઇન લો, કાં તો ફાધર, કાં તો હસબન્ડ. તો આ અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્લ્ડમાં ફિમેલ ઇન્વેસ્ટરો બહુ ઓછા છે, જે પોતાના ડિસિઝન પોતાની સાથે પોતાની જાતે જ લે છે. મેં કોમલબેનને કીધું કે તમે આ કામ કરો, અમુક 100, 500, 1000 ફેમિલીને એન્ગેજ કરો અને એને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ શીખવાડો, એસ્પેશિયલી ફિમેલ ઇન્વેસ્ટર્સ. જે મહિલા પોતે કમાય છે 20,000 રૂપિયા, 50,000, 1 લાખ રૂપિયા, 5 લાખ, 10 લાખ રૂપિયા, જે પણ એની ઇન્કમ છે એ પોતે કેવી રીતે મેનેજ કરે. એમણે ખૂબ જ એક ડ્રાસ્ટિક ડિસિઝન લીધો અને એમના પરિવારે એમને સપોર્ટ આપ્યો. એમના હસબન્ડ પણ અહીંયા છે, પ્રેમભાઈ ભાનુશાલી. She left her profession. હું તમને કહું કે તમે મહિનાના લાખ રૂપિયા કમાવો છો ને કાલથી કાંઈ નથી કમાવાનું, બીજું કામ કરો તો કેટલા લોકો કરશે? Sorry, but in the interest of time, એક મિનિટ, ખાલી 1 minute. She left the profession. She started the journey into financial planning with us. I think એમના માટે ક્લેપ કરવું જ જોઈએ આપણે. 1,000 રૂપિયાનું કોઈને એસઆઈપી કરવી છે તો અહીંયાથી થાણા પણ જાય છે, ડુંગરલી પણ જાય છે, દાદર પણ જાય છે અને પરિવારને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપવાનું કામ કરે છે. આ સમાજની દીકરી છે, મને લાગ્યું કે મારે કહેવું જોઈએ, આપણા સમાજની દીકરી આટલું સારું કામ કરે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. 100%. So basically શું છે કે obviously these are all basically teaser sessions which we are doing. તો જો અમારી જે ભાનુશાલી મહિલાઓ છે ઘણા બધા શેર માર્કેટમાં પણ આજકાલ ટ્રેડ કરે છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પણ રસ ધરાવે છે, તો we will always have we will possibly organize a special workshop which Komal can certainly work on. So our team will certainly work with you and figure out a workshop for on that. Thanks for it. Thank you very much. Thank you. Next I'll call upon stage official from Kuvarji. Yeah. So now he has a very hard task because he will have to have a very quick word. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली उसके बारे में बताइए और कहाँ पे अपने ऑफिस है वो भी जरूरी है. गुड इवनिंग सर. 60 साल का कंपनी लेके आया हूँ, नाम है कुंवरजी और 32 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है. वी आर इनटू लॉजिस्टिक, एग्रो कमोडिटी, जिसमें हम पैन इंडिया टॉप 3 रैंक करते हैं. हम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट वो भी प्रोडक्ट में से. करंटली बॉम्बे में थाना एंड अंधेरी में हमारा ऑफिस है. Pune office we have just started. Delhi we have started. We are looking at now Nagpur और we are spreading our legs. मैं आपका कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ. मैं इतना बताऊँगा कि हमारा वेल्थ फोलियो 5 लाख से स्टार्ट होता है. CAGR लो या अल्फा 15% लास्ट 3 साल का हमने दिया है. प्रोडक्ट डिटेल्स में ज़्यादा आपसे शेयर यहाँ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत महारथी बैठे हुए हैं जो आपको आगे बहुत ध्यान देने वाले हैं. तो जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू, कलर्स योर इन्वेस्टमेंट विद कुंवरजी. एंड थैंक यू आनंद भाई एंड थैंक यू द ऑर्गेनाइजेशन कि ऐसा प्रोडक्ट सेल करने के लिए और ऐसी ऑडियंस हमको दी. थैंक यू सो मच. तो मैं बताऊं कि बेसिकली कुंवरजी जो है यहाँ पे अपने जो सतीश भाई है, सतीश भानुशाली, तो वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी बीच में काफ़ी सारे SME के बहुत हिट IPO भी लाए. आपको ये बता दूं, सतीश भाई भानुशाली इज विद अस. हमने हमारा मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन में SME IPO अभी हिट किया था जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन वाला SME IPO बना था. एंड दैट इज अ प्राउड ऑफ अस एंड इवन द प्राउड ऑफ यू पीपल बिकॉज ही इज अटैच्ड विद द भानुशाली ग्रुप. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट कुंवरजी फॉर स्पॉन्सरिंग द इवेंट. वहाँ पे मैं बोलूँगा कि बेसिकली टैक्समैन का एक PPT है शायद, वो अगर आप रन कर सकते हैं तो टैक्समैन का बाहर एक्चुअली स्टॉल है. तो वो काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल बुक्स है, CA है, नॉन CA रिलेटेड प्रोफेशनल बुक्स है, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
उन्होंने काफ़ी स्पीकर्स के लिए भी एक फ्री गिफ्ट दिया हुआ है एज अ बुक। एंड मैं ये बता दूं कि उन्होंने बोला है कि हमको 20 से लेकर 35% तक का डिस्काउंट देंगे बुक्स के ऊपर। तो कोई भी सी है, नॉन सी, आपका फ्रेंड है तो ज़रूर उनको रेफर कीजिए। टैक्स मंथ को वो हमेशा अपने इवेंट को स्पॉन्सर